Hello guys, welcome back to Career Launcher Education Center. So guys, what we have discussed in our previous lecture? Yes, we have discussed about the chemistry and its type. Actually, there are so many types of chemistry, but we have discussed only 3 types of chemistry. First one is your what? Physical chemistry. Second one is your what? Inorganic chemistry. And third one is your what? Organic chemistry. Yes or no? So guys, today we have deals with the matter and its state of matter. Matter and state of matter. So guys, tell me what does mean by matter? Yes, you have already known because we have already discussed about it in our previous lecture. What does mean by matter? Matter is anything. Matter is that anything which is having some mass and which can occupy some space. That is what matter is, that anything, or matter is the substance. Matter is the substance. The substance having some mass and which can occupy some space is called as matter. मैटर उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे गाइस? मैटर कहेंगे. यस, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज इस यूनिवर्स में एक भी चीज अगर होंगी जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई. देखिए गाइस, स्पेस ऑक्युपाई करना, स्पेस ऑक्युपाई करने को ही हम लोग वॉल्यूम भी कहते हैं. स्पेस ऑक्युपाई करने को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग वॉल्यूम भी कहते हैं. आप लिख देता हूं मैं, विच कैन ऑक्युपाई सम स्पेस. यहाँ पे ब्रैकेट में मैं मेंशन कर देता हूं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम because the substance volume is nothing but what? The substance which can occupy something. Yes or no? That's what your volume. So it is nothing but that. Matter is nothing but what? The substance having some mass and which can occupy some space is called as matter. Let's take some example. If suppose we have consider this pen. Tell me, is this pen your matter? Yes, this pen is your matter because it is having some mass and it can occupy some space. Yes or no? Take some more example. Let's take an example that if we take a glass of water. अगर मान के चलिए हम लोगों ने एक ग्लास में पानी लिए, मुझे बताइए वो जो पानी है क्या उसका मास है? S. क्या वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है? Yes. It means that water is also a matter. If we take some more example about, that is, if we take example that the air in a balloon. Tell me, that air is your matter or not? Yes, that air is also your matter because it is also having some mass and it can also occupy some space. But what we have seen in 3 examples, that is what? First one is what? If this pen, second is your water, and third one is your gas. It means that there are mainly 3 states of matter. First one is your what? Solid state. Second one is your what? Liquid state. And third one is your what, guys? It is nothing but what? Gaseous state. So guys, क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारे मैटर है उस मैटर के बेसिकली देखा जाए तो कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं गाइस? 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं. कौन से होते हैं? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. सो गाइस, how we can define the matter is in solid state or the matter is in liquid state or the matter is in gaseous state? There are some at least identities by which we can define that it is in a solid state, it is in a liquid state, it is in a gaseous state. There are some properties. So let's discuss guys, what are the properties of solid state, liquid state and gaseous state. देखते हैं कि कौन से वो प्रॉपर्टीज होंगी जिससे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि वो मैटर हमारा सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में. लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्टली सॉलिड स्टेट. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट के हमारे कौन सी प्रॉपर्टीज रहेंगी. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज की, तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है गाइस, कि यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस होता है या जो मैटर होता है गाइस, उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम. क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? शेप, साइज एंड वॉल्यूम. दैट इज व्हाट they have fixed shape and volume. ये जो हमारे मैटर्स होते हैं बेटा सॉलिड स्टेट में जो पाए जाते हैं, उनका जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है गाइस, जो क्या होता है? शेप होता है और वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है. इट मींस व्हाट?
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मान के चलिए ये पेन है, मुझे बताइए ये पेन सॉलिड स्टेट में, यस हम लोग देखते बराबर तो अभी पहचान ही सकते हैं ना कि ये हमारा सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में। मुझे बताइए सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में, यस दिस वन इज इन अ सॉलिड स्टेट, व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ फिक्स्ड शेप एंड इट इज हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ऐसा और नो, ऐसा और नो। इट मींस दैट वी कैन से दैट द सॉलिड स्टेट में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मैटर्स होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है गाइस, फिक्स्ड होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। सो गाइस मुझे बताइए हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं? गाइस हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं क्यों इनका साइज और शेप या वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, बिकॉज ये जो मैटर्स बनते हैं जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनते हैं बेटा, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एग्जैक्टली एकदम से क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं क्या बोल सकता हूं? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। यहाँ पे जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? क्लोजली पैक्ड होते हैं। इट मींस दैट जैसे एग्जांपल के तौर पे चलिए मान के चलिए ये एक मेरा मैटर है जो सॉलिड स्टेट में, ओके, तो यहाँ पे जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब जिस चीज से ये हमारा बना हुआ है सॉलिड, ओके, ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे पैक्ड होते हैं बेटा? एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब इनको मूव होने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे पैक्ड होते हैं बेटा? क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में एक भी स्पेस नहीं होती। जैसे मान के लिए पार्टिकल, इस पार्टिकल को देखिए इसने भी पैक किया, इसने भी पैक किया, इसने भी पैक किया, इसको मूव होने के लिए कोई जगह मिल रही है क्या? नहीं मिल रही ना। इट मींस दैट वी कैन से दैट कि जो हमारे सॉलिड स्टेट होते हैं गाइस, उसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं हो सकते। इट मींस दैट थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं ना, वो क्या लिख सकते हैं बेटा? दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं हो सकते। अब मुझे बताइए गाइस, अगर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव ही नहीं हो सकते, इसका शेप और साइज एकदम फिक्स्ड है, पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो मुझे बताइए क्या मैं इसको कंप्रेस कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। इट मींस दैट फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं गाइस, कि जो हमारे सॉलिड स्टेट में मैटर्स होते हैं, ओके, दे आर नॉन कंप्रेसिबल, दे आर नॉन कंप्रेसिबल। कैसे होते बेटा? ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। दिस वन इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। सो गाइस मुझे बताइए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या मैं ये बोल सकता हूं? अब मुझे बताइए, चलिए बोलने से पहले मुझे बताइए, अगर ये पेन है, इस पेन को मैं यहां पर रख देता हूं, मैं बोलता हूं पेन बह जा, पेन बह जा। चलो एक काम करते हैं, मैं बोल देता हूं हमारे घर में पलंग है, मैं उस पलंग को बोल देता हूं बेटा, बेटा नहीं वो तो चीज है ना, चलो बेटा नहीं पलंग चीज है ना, मैं उस पलंग को बोलता हूँ पलंग उड़ जा। क्या बोल रहा बेटा? पलंग उड़ जा। मुझे बताइए पलंग उड़ेगा क्या? चलो नहीं उड़ेगा। मैं उसको बोलूंगा बेटा बैठ जा, बेटा नहीं गाइस, चीज चीज सॉरी, पलंग बैठ जा। बहेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बहेगा बेटा? बिकॉज उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती। दे डोंट हैव अ फ्लूइडिटी, दे हैव नॉट फ्लूइडिटी, उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है गाइस। और लास्ट वन जिसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, दैट इज व्हाट लास्ट प्रॉपर्टी, मैं क्या बोल सकता हूं? दैट इज व्हाट सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। सॉलिड्स कैसे होते हैं हमारे? हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। इज दैट क्लियर? कोई डिफिकल्टीज है गाइस इसको समझने के लिए? बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है और ये हमारे इसके प्रीवियस कक्षा में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के हो चुके हैं। लेकिन कैसा बेसिक चल रहा है हमारा, तो बेसिक लेक्चर में जो भी हम लोग चीज पढ़ रहे हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें काम में आने वाली है, इसी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इन चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ओके सो गाइस, ये तो थे सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टी। अगर मुझे बात करना है लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टी, किसकी डिस्कस करना है बेटा? किसके प्रॉपर्टी डिस्कस करना है? लिक्विड स्टेट के, लिक्विड स्टेट। तो मुझे बताइए क्या हो जाएंगे लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टीज? चलो देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टी बोलता हूं लिक्विड स्टेट की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज व्हाट, मुझे बताइए, आप खुद बताइए, ओके, मुझे बताइए, सपोज कर दे एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी लिया, एक ग्लास में मैंने क्या लिया? पानी लिया। थिंक अबाउट इट, ओके, एक ग्लास है, उस ग्लास में मैंने पानी लिया, ओके। अब मुझे बताइए ये जो ग्लास में मैंने पानी डाला, तो उस पानी का जो शेप है वो कैसा बनेगा? वो ग्लास के हिसाब से बनेगा, ऐसा और नो। लेकिन यही ग्लास ऑफ वाटर मैं किसी पतीले में डाल देता हूं, तो उस बार पानी का शेप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे शेप क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नो गाइस, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जितना उसका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा। इट मींस दैट मैं यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूँ? दैट इज व्हाट, दे हैव
fixed volume. They have fixed volume, but not shape. उनका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है गाइस? फिक्स्ड होता है. इज दैट क्लियर? सो मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस बिकॉज यहाँ पे जो मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये एग्जैक्टली क्लोजली पैक्ड नहीं है बेटा. दे आर समथिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, द कंस्टिट्यूएंट particles are away from each other. यहाँ पे जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना गाइस, ये थोड़े से दूर होते हैं. जैसे कि मान के लिए ये एक मेरा लिक्विड स्टेट में हमारा मैटर है, तो यहाँ पे जैसे मान के लिए ये मेरा पहला पार्टिकल है, तो दूसरा पार्टिकल कुछ इस तरह से रहेगा, तीसरा पार्टिकल कुछ इस तरह से रहेगा, चौथा पार्टिकल कुछ इस तरह से रहेगा, पांचवा पार्टिकल यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा रहेगा, छठवा यहाँ पे कुछ तो भी रहेगा. तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है हम लोगों को? पार्टिकल एक दूसरे से दूर है. अब पार्टिकल एक दूसरे से दूर है तो मुझे बताइए क्या ये मूव हो सकते हैं? यस, ये पार्टिकल मूव हो जाएगा ना, बिल्कुल, बिकॉज इनको स्पेस मिल रही है ना इधर उधर मूव होने के लिए. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल सकता है बेटा? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन मूव. क्या बोल सकता है बेटा? मैं यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, द कंस्टिट्यूएंट दे कैन मूव. दे कैन मूव. वो क्या हो सकते हैं बेटा? मूव हो सकते हैं. ऐसा और नो. अब मुझे बताइए अगर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव हो सकते हैं तो क्या ये कंप्रेसिबल रहेंगे या नॉन कंप्रेसिबल रहेंगे? तो चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. मान के चलिए मैंने पिचकारी में लिया पानी. अब पिचकारी में पानी लेने के बाद मैंने सामने से इसको बंद कर दिया और इधर से प्रेशर क्रिएट करना चालू किया. मैं इधर से कंप्रेस करो, प्रेशर क्रिएट करो, कंप्रेस करो, प्रेशर क्रिएट करो. मुझे बताइए पानी उधर से निकलेगा क्या? नहीं. क्यों नहीं निकलेगा बेटा? बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर तो होते लेकिन कैसे होते बेटा? नॉन कंप्रेसिबल होते. कैसे होते बेटा? नॉन कंप्रेसिबल होते. इज दैट क्लियर? तो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बोल सकता हूं, दैट इज व्हाट they are non compressible. ये भी कैसे नहीं होते बेटा? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं. ओके, ये भी कैसे होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं. इज दैट क्लियर? अब बात करते बेटा इसके फ्लूइडिटी की. किसकी बात करते हैं? इसके फ्लूइडिटी की. मुझे बताइए क्या पानी बहता है? ऐसा और नो? यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं सर, हमें एग्जैक्टली पता है कि पानी बहता है. पानी को थोड़ा सा ऐसे डाल दो तो क्या हो जाएगा? बह जाएंगे. इट मीन दैट दे हैव अ फ्लूइडिटी. दे हैव फ्लूइडिटी. उनमें क्या होता है बेटा? फ्लूइडिटी होती है. तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट. यहाँ पे कोई दिक्कत है गाइस? अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से देख लेते हैं हमारे गैसेस स्टेट के कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. ऐसा और नो? चलो लेट्स टेक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? गैसियस स्टेट. ओके, सो मुझे बताइए बच्चा लोग, तो अगर मैं गैसियस स्टेट के फिजिकल स्टेट की बात करता हूं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, गैसियस स्टेट, इस बार मैं बात कर रहा हूं बेटा गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज की. तो मुझे बताइए गैसियस स्टेट की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो यहाँ पे शेप और साइज क्या मतलब जो होगा? शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होगा क्या? नहीं होगा ना. तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकता हूं, द शेप and volume does not fixed. इनका शेप और साइज या शेप और वॉल्यूम क्या नहीं होता बेटा? फिक्स नहीं होता है. ओके, अब ये चीज क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. ओके, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर far away from each other. एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बेटा गैसियस स्टेट में, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. इट मीन दैट जैसे मान के चलिए ये मेरे गैसियस स्टेट में मैटर है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, चौथा पार्टिकल, तो इनके बीच में बहुत ही बड़ी गैप होती है. इसी वजह से यहाँ पे अगर इनके बीच में बहुत ही बड़ी गैप होती है तो वो मूव हो सकते हैं. यस, दे कैन आल्सो मूव. दे कैन आल्सो मूव. और अगर ये मूव हो सकते तो ये क्या कंप्रेसिबल है? यस बेटा, अगर यहाँ पे मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूं तो इनको कंप्रेस किया जा सकता है गैसेस को. अब आप बोलोगे सर कैसे? एग्जांपल के तौर पे डिस्कस कीजिए. थोड़ा सा देखिए, हमारी साइकिल पंचर हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें एयर पास करते, बराबर है. इट मीन दैट क्या कर रहे हैं बेटा? इधर से प्रेशर क्रिएट कर रहे तो एयर पास हो रही है, मतलब वो कंप्रेस हो रही है ना. ऐसा और नो? इट मीन्स दैट दे आर कंप्रेसिबल.
कैसे होते बेटा, ये कंप्रेसिबल होती है। ओके, एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या, वो फ्लूइडिटी अगर चेक करते तो फ्लूइडिटी अगर हम लोग बात करते तो आर दे फ्लूइड, मतलब आर दे शोज द फ्लूइडिटी, यस गैसेस भी तो बहते हैं बेटा हवा में, देखो ना यहाँ पे बह ही तो रही है, ऐसा नो, तो दे हैव अ गुड फ्लूइडिटी, दे हैव गुड फ्लूइडिटी। हम अगर इसकी फ्लूइडिटी की बात करते हैं बेटा तो इनकी फ्लूइडिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द मैटर एंड द स्टेट ऑफ मैटर। आई होप सो दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी difficulties over here, then you can ask me in the comment box. Okay, thank you so much guys, have a nice day, thank you so much.